Good morning students. Welcome to Shiv Jyoti Educational Group Kota. This is Barkha Gaur, your biology teacher. How are you students? I hope you all are fine and doing well at your places. Students, today we are going to revise chapter 3 and 4 of your class 11 biology. So students, as you have already gone through the revision of chapter 1 and 2, you might be able to understand how we are taking the revision. So we will be discussing the important points of these two chapters. We have clubbed these two chapters so that we can revise them. So we are starting with chapter 3. Now before I start revising the important points, all of you open your books, chapter 3, Plant Kingdom, page number 29. It would be better for your understanding कि आप book भी खोलें so that you can mark the important diagrams and you can underline the important points. So children, first of all we will start with plant kingdom. So you have already gone through the chapter 2, that is biological classification. Biological classification में हमने देखा था 5 kingdom classification. 5 kingdom classification में we have just हमने plant और animals के बारे में सिर्फ introduction करके छोड़ दिया था. So now we will be understanding in detail about plant kingdom in this chapter. So as you know, plant kingdom is also very vast kingdom. There are variety of plants. So plant kingdom is classified into 5 divisions. हमने hierarchy पढ़ी है, पहले kingdom आता है, then phylum and उसी के parallel होता है division. तो जब हम plant kingdom की बात करते हैं तो division बोलते हैं उसको, है ना, phylum की जगह division बोलते हैं. So there are 5 divisions in this plant kingdom: algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. Now the one thing you should remember is that angiosperms have been deleted from your portion for this year, तो हम angiosperms नहीं पढ़ेंगे. We will start with the algae. Algae को हम thallophytes भी कह सकते हैं. Now we will discuss first of all the main characteristics of algae. For if you want to underline the points, you can open page number 30 for algae. Now the main characteristics, general features क्या हैं algae के? It is green, it has chlorophyll, it can prepare its own food. तो ये autotrophic है, nutrition इनका कैसा है? Autotrophic है. And अगर हम reproduction की बात करें या habitat की बात करें, habitat they are found in aquatic environment, चाहे वो fresh water हो या marine algae हो, तो they are found in water. And reproduction, they reproduce by vegetative reproduction also, asexually also and sexually also. तो in general हम कह सकते हैं कि algae reproduces asexually by fragmentation, vegetatively fragmentation से होगा mainly. And when asexual reproduction की बात होती है तो zoospores are the spores, and if they are motile they are having flagella for the movement. And sexual reproduction, अब देखिए gametes बनेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बताते हैं हम कि gametes का फॉर्मेशन होता है. इफ gametes आर फॉर्म्ड इन algae, देन देयर कैन बी ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फ्यूजन कह सकते हैं हम, जैसे oogamous, दैट मीन्स the gametes are of different kinds. They are the female gamete is larger in size and it helps to store food, and the male gamete is smaller in size. Anisogamous होगा तो that means the gametes are dissimilar, and isogamous है तो means gametes are same in size and shape. तो there are 3 kinds of gamete formation in algae. तो ये तो थे general characters. आप diagram refer कर सकते हो पेज नंबर 31 पे. All different kinds of algae are given on this page. Now come to page number 32. If we talk in general the economic importance भी है algae की, that means it can be used for एज अ स्पेस ट्रेवलर्स जो हैं फूड के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. ये आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में भी ये एल्गी काम में आती हैं. और एनवायरनमेंट की बात करें तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो दे आर द प्रोड्यूसर्स फॉर द एनवायरनमेंट. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गी. तो मेनली क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ये 3 क्लासेस हैं. जब हम इन तीनों क्लासेस की बात करेंगे तो वी विल कंपेयर दीज क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, जैसे इनका हैबिटेट, इनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, इन व्हाट फॉर्म द फूड इज स्टोर्ड इन देम, एंड हाउ दे आर रिप्रोड्यूसिंग, या सेल वॉल है तो कैसे सेल वॉल बनी हुई है, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक क्लोरोफाइसी विच इज ग्रीन इन कलर. क्लोरोफिल प्रेजेंट है मेनली
the pigments which are present in this are, you can refer to page number 33, एक टेबल बना हुआ है आपको, टेबल 3.1, इसमें आपको पूरा शॉर्ट में सारा डिस्क्राइब मतलब मेन पॉइंट्स गिवन है। तो क्लोरोफिल A and chlorophyll B are the main pigments which are present in chlorophyce, ठीक है। The food is stored in the form of starch and the cell wall is made up of cellulose. So these are the main characteristics of this algae. और सेकेंड की हम बात करते हैं Phaeophyce. Phaeophyce is brown in color. The pigments which are present in them is fucoxanthin and chlorophyll भी थोड़ा थोड़ा present है. Chlorophyll A and C are present. Brown algae में example is given Ectocarpus, ठीक है, and carotenoids and xanthophylls are also present in small amount. और mainly क्या है, fucoxanthin pigment है. Food is stored as in the form of carbohydrates, ठीक है, और mannitol और laminirin, these are the two important substances which are stored in the form of food. एक इनसे gelatinous substance भी बनता है जिसको algin कहते हैं, and these algae have some structure called hold fast to get attach themselves on the substratum. जैसे जहाँ भी ये लगे हुए होंगे, जहाँ पे भी ये grow हो जाते हैं, तो they attach themselves with the help of hold fast, ठीक है। Then stripe and frond भी इनके parts हैं। Third type of algae की हम बात करते हैं Rhodophyce. Rhodophyce is the red algae and जो pigment present है इसमें chlorophyll A, D and phycoerythrin. These are the main pigments. Floridian starch के form में food store है, ठीक है। सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की सेल वॉल बनी हुई है। देन इसके बाद हम आते हैं ब्रायोफाइट्स पे। अब देखो एल्गी जो प्लांट्स थे दे डोंट हैव एनी वेल डिफरेंशिएटेड ऑर्गन्स, ठीक है, कोई पार्ट्स नहीं है, कोई रूट स्टेम लीव्स नहीं है, नो वैस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट। नाउ एज द इवोल्यूशन ऑकर्ड, जैसे जैसे थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। दैट मीन्स दे कैन they need water of course, but they grow near the water and they can grow on land and water both. Now the main characteristics of bryophytes is there that still they are not differentiated into root, stem and leaves. आप पेज नंबर 35 पर आ जाइए, पेज नंबर 35 पे इसके बारे में it is given on page number 35 and some examples, some diagrams are given on page number 34 figure 3.2। जैसे मार्केंशिया दिए which is a liverwort, इसमें फीमेल और मेल थैलस अलग अलग है। देन मॉसेस इज गिवन, फ्यूनेरिया, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। फ्यूनेरिया का मैं अभी आपको एग्जांपल समझाऊंगी। देन स्वेग्नम का गैमेटोफाइट भी गिवन है। नाउ इन टॉपिक्स में या इन फाइलम में हमें जो मेन चीज़ याद रखनी है दैट इज द लाइफ साइकिल इनकी कैसे होती है, तो विल डिस्कस इट। ऐसे ही टेरिडोफाइट्स में भी हम देखते हैं, टेरिडोफाइट्स आर द मोर एडवांस्ड देन द ब्रायोफाइट्स। जैसे ब्रायोफाइट्स तो लैंड एंड वाटर एम्फीबियंस टाइप के थे, लेकिन टेरिडोफाइट्स आर द टोटली टेरेस्ट्रियल प्लांट। बट वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट कि इसमें भी अभी वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है एंड दे आर द स्मॉल प्लांट। यू कैन कम ऑन पेज नंबर 36। टेरिडोफाइट्स, इसमें मेनली स्पोरोफिल्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोरोफिल्स आर फॉर्म्ड विच गिव राइज टू कोन्स या स्ट्रॉबिलस, ठीक है। तो इवोल्यूशन वाइज ब्रायोफाइट से ज़्यादा एडवांस्ड हैं टेरिडोफाइट्स, इनमें कोन्स भी बन जाते हैं एंड दे आर मल्टीसेलुलर, दे फॉर्म प्रोथैलस ऑल्सो। अब मेन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज कि इसमें एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनियम आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच आर फॉर्म्ड। अभी जैसे आप देखिए दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल अगर देखें तो मेनली क्या है, स्पोरोफाइट जनरेशन है विच इज डिवाइडिंग, स्पोर्स डिवाइड हो रहे हैं मेयोसिस से, स्पोरेंजियम में स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, देन माइटोसिस के थ्रू एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें, देन दे विल बियर गैमेट्स, ओव्यूल में फीमेल गैमेट एंड द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, देन अ zygote is formed and zygote give rise to gametophyte. In this way the life cycle is continued of bryophytes. सेकेंड है हमारा टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल। इन दिस कौन सा फॉर्म, जैसे अभी बताया था मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबेलाई बनते हैं एंड आफ्टर अंडरगोइंग मेयोसिस दे फॉर्म गैमेटोफाइट इन विच गैमेट्स आर फॉर्म्ड। आर्किगोनियम में फीमेल गैमेट बनेगा एंड पॉलन आर फॉर्म्ड, देन पॉलन एंड द फीमेल गैमेट and female gamete fuses together after fertilization,
by which zygote is formed, zygote give rise to embryo, then the embryo converts into sporophyte. So in this way the life cycle of pteridophyte is also completed. Then the one more division is there, that is gymnosperm. तो जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म्स आर स्टिल मोर एडवांस्ड. आपने देखा होगा जिम्नोस्पर्म्स में कुछ हायर प्लांट्स भी हैं, टॉल प्लांट्स भी हैं, कुछ स्मॉल प्लांट्स भी हैं. एंड समटाइम्स some fungi also live in association with mycorrhiza, with gymnosperm plants which is called as mycorrhiza. तो mycorrhiza क्या है? एक symbiotic association है fungi and gymnosperm का. Now how its life cycle goes on. अच्छा, जिम्नोस्पर्म का मीनिंग क्या है? नेकेड सीड्स. तो यहाँ पे सीड्स फॉर्मेशन हम देख सकते हैं जो कि टेरिडोफाइट्स में ही शुरू हो गया था. तो सीड फॉर्मेशन की जो हम इवोल्यूशन कह सकते हैं इसको, या सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बट द सीड्स आर नेकेड. यू कैन कम ऑन पेज नंबर 39. सम फिगर्स, सम डायग्राम्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर गिवन लाइक साइकस, स्पाइनस एंड जिंको. अब इनकी क्या स्पेशलिटी है? दे हैव माइक्रोस्पोरोफिल्स इन विच माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड. तो माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे जिसमें कि मेल स्ट्रोबिलाई बनेगा एंड इट गिव राइज टू पॉलन ग्रेन. तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा. ऐसे मेगास्पोरेंजिया में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा एंड देन द फ्यूजन ऑफ दीज गैमेट्स विल टेक प्लेस एंड व्हेन दे फ्यूज टुगेदर तो क्या होगा? द जाइगोट विल बी फॉर्म्ड विच विल गिव राइज टू एम्ब्रियो. So in this way the life cycle of gymnosperm is also completed. So children, we have discussed algae, bryophytes, pteridophytes and gymnosperms. As I have already told you, angiosperm is no more in your course, so we are not discussing it. Now we will discuss the question answers, some of the important question answers of this chapter. So let's begin with the question answers of this chapter. We will discuss in short all the important questions. Now what is the basis of classification of algae? As earlier I have already explained you, the basis of classification क्या रहता है कि किस तरह का pigment present है, किस तरह का nutrition है and what type of photosynthetic food they are, they have reserved in their body, which type of flagella is present and cell structure and composition of the cell wall. These are the basis of classification of plant kingdom. Now when and where does reduction division take place in life cycle of a liverwort? तो किस तरह से होता है? तो रिडक्शन डिवीजन होगा इसमें, दैट इज मेयोसिस विल टेक्स प्लेस इन विच क्रोमोसोम नंबर आर रिड्यूस टू हाफ. तो इन दिस वे द डिवीजन या द नेक्स्ट जनरेशन इज फॉर्म्ड एंड लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड. इन जिम्नोस्पर्म्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, जिसमें दो तरह के लीव्स, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल लीव्स प्रोड्यूस होते हैं. तो वी हैव डिस्कस दिस इन, अभी वीडियो में हमने सारा डिस्कस किया कि हाउ डज लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड. ओके, देन नेम 3 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स दैट बियर आर्किगोनिया. तो हमने देखा ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में एंड जिम्नोस्पर्म्स में भी आर्किगोनिया प्रोड्यूस होते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द प्लॉइडी. प्लॉइडी बतानी बेटा. प्लॉइडी का मीनिंग होता है कि वेदर दे आर हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या डिप्लॉइड. तो जो मेयोसिस से जो भी सेल बनता है वो हैप्लॉइड होता है, एंडोस्पर्म हमेशा ट्रिप्लॉइड होगा और जो जाइगोट है वो हमेशा डिप्लॉइड होगा. ठीक है, तो जैसे दिया मेरिस्टेम सेल ऑफ मोनोकॉट इट इज डिप्लॉइड, जेमा सेल्स जो है हैप्लॉइड है, प्रोथैलस इज हैप्लॉइड अगेन, लीफ सेल ऑफ ए मॉस इज हैप्लॉइड, प्रोटोनेमल सेल ऑफ ए मॉस इज हैप्लॉइड एंड जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी. तो एल्गी एंड जिम्नोस्पर्म दोनों की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बतानी है. ये हमने अभी डिस्कस किया था वीडियो में कि जैसे फूड फॉर कैटल यूज होता है, स्पेस फूड के फॉर्म में यूज होता है, इट इज रिच इन प्रोटीन. तो ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ एल्गी. देन अगर जैसे इट इज अ काइंड ऑफ जेली इन विच डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी कल्चर्ड. तो इसमें भी काम में आता है, एंटीबायोटिक्स में भी काम में आते हैं ये. ओके, देन जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स के जो ट्रीज हैं, जो लॉन्ग ट्रीज हैं, टॉल ट्रीज हैं, उनकी वुड इज यूज्ड एज टिम्बर. ऑर्नामेंटल यूज फॉर शो ऑल्सो, जैसे क्रिसमस डेकोरेशन के लिए भी ये प्लांट्स काम में आते हैं. एंड जैसे टर्पेंटाइन ऑयल, वुड, मिथेनॉल, मेंथॉल, डिसइंफेक्टेंट्स, पेंट्स एंड परफ्यूम्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम दीज प्लांट्स. After this we will discuss question number 7, what is heterospory.
देखो होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस टू कंडीशंस होती हैं. होमोस्पोरस मीन्स सेम टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंड हेट्रोस्पोरस मीन्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ विच आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज, तो वो कहलाएंगे हेट्रोस्पोर्स. देन कुछ टर्म्स हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 में, प्रोटोनिमा, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, डिप्लॉन्टिक, स्पोरोफिल एंड आइसोगैमी. तो इसमें जैसे इंपॉर्टेंट है आपका एंथ्रीडियम. एंथ्रीडियम आर द मेल सेक्स ऑर्गन्स, आर्किगोनियम आर द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. ओके, देन स्पोरोफिल. स्पोरोफिल क्या है? जो लीव्स हैं वो एग्रीगेट होकर स्पोरोफिल बनाते हैं. माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल, जो कि मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करता है. आइसोगैमी अभी एक्सप्लेन किया था आपको. देन डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ब्राउन एल्गी वी हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो. लिवरवर्ट्स एंड मॉस भी ऑल्सो हमने डिस्कस किया है. होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस अभी बताया. सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, ये आपके एंजियोस्पर्म में आता है, तो विल नॉट डिस्कस दिस. ओके, then how would you distinguish between monocot and dicot? This is also not to be discussed. Last question हम देख लेते हैं, question number 12, that is describe the important characteristics of gymnosperms. तो gymnosperms means naked seeds, अभी मैंने बताया ही था आपको. एंड प्लांट्स की साइज भी बहुत डिफरेंट है. कुछ टॉल प्लांट्स हैं, कुछ वेरी स्मॉल प्लांट्स हैं. माइकोराइजा अभी एक्सप्लेन किया था मैंने आपको. द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, जैसे पाइन ट्रीज में बहुत ही पॉइंटेड लीव्स होती है विच हैव थिक क्यूटिकल and sunken stomata. And gymnosperms are heterosporous, means two different kinds of spores are produced, male and female, and they combine to form cones, या उनको स्ट्रॉबिलाई करते हैं. And fertilization takes place by pollination and results in the formation of uncovered, that is naked seeds. That means seeds are not covered by fruit. So this was all about the question answers of this chapter. I hope you would have understood. So thank you. Take care. Goodbye.